Leave your dreams, fields with seeds unsown. Leave your child and leave your home. The Sarkar's servant is on the way, and you must carry his load today. These lines are beautifully highlighted the condition of forced and bonded labor in pre-independence period, especially in the hills. How zamindars of these regions torture, exploited the poor farmers and workers for this unpaid jobs. So today we are going to discuss about the Begar system in the hills. So hello students, welcome to Raj Malhotra IAS and Target HPS 2026 series. Today we are going to discuss another important topic of Himachal Pradesh General Studies, which is the Begar system in hills and its transformation in the British era. So we will start from understanding the meaning of Begar system. Begar system is a practice where people were compelled to work unwillingly, without any payment, without any wages, and gradually this practice become a social order. However, it's a evil, but in that time it was not considered. It was a tool of zamindars to exploit the poor farmers in the hills, especially in the hills. So thoroughly discuss about the categorization of the system. Let us move ahead. So we can start understanding its existence in the hills. So it can be prevalent in three ways, especially in the hills, not only in Himachal Pradesh but also in other hills like Uttarakhand or in the northeastern part of India. Even Begar system was prevalent in that regions, but in different manner. So in Himachal it was prevalent in three ways. First is the Athwara Begar, where poor workers have to carry the palkis of royals from one foothill to other. Second is the Beth Begar, where they have to work under the landowners. They were not paid even a single penny for it. Third is the Kuli Begar. This system was mainly prevalent in the British era. When the Britishers came here, they need laborers. So zamindars provided these laborers for Britishers to carry their bags, to carry their loads in the hills from one place to second or third place. Especially they were act as a mode of transportation in that time. Alright, so these were the three ways of Begar system prevalent in the Himachal hills. Now let us discuss about its origin, how it became a social practice and how it changed when the Britishers came here. So we will start from its origin. So शुरुआत हम कर सकते हैं भाई कैसे इसकी शुरुआत हुई होगी, मतलब यहाँ मैं बेगार सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ. देखिए शुरुआत में जो आपके लैंड लेस फार्मर्स हैं, दे नीड लैंड फॉर लिविंग आल्सो. उन्हें घर बनाना है, बेसिक जो नीड्स है, बिकॉज द सोसाइटी वाज एग्रेरियन इन दैट टाइम. दे नो अदर वेज ऑफ अर्निंग, सो दे डिपेंड अलॉट ओवर लैंड. सो इस तरीके से जो लैंड ऑनर्स थे उन्होंने इन लोगों को ज़मीनें दी रहने के लिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत अपना जो एग्रीकल्चर है उसके लिए. बट इसके बदले में वो उनसे काम करवाते थे अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में, और धीरे धीरे अपने घरों में भी उनसे काम करवाने लगे. ठीक है, एक सोशल ऑर्डर के तौर पे. जैसे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई तरीका तो था नहीं, तो पालकियां होती थी. इन पालकियों में इन रॉयल्स को, इन जमींदारों के परिवारजनों को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता था. एज अ सर्वेंट दे हैव टू सर्व. सो बेगार सिस्टम के तौर पे ना वो अपने एक तरीके से सर्विसेज देते थे ताकि जो भी उनको सुविधाएं बेसिक दी जा रही हैं वो उनको मिलती रहें. जैसे ज़मीन दी थी, अब हो सकता है मेरे परदादा को ज़मीन दी थी, बट उस ट्रेडिशन को मुझे भी कैरी करना पड़ेगा. And even I'm not paid even a single penny for it. All right. So this practice, this evil practice existed in the hills. थर्ड, जब कॉलोनियल इरा स्टार्ट होता है तो इन लेबरर्स का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा भी, बिकॉज ब्रिटिशर्स जमींदारों से सनद लिया करते थे. ठीक है, और बहुत से रोड्स कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कंस्ट्रक्शन में दे नीड इंडियन लेबर्स, स्पेशली हिमाचली लेबर्स इन द हिल्स. जब हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, सो जमींदार ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रोल्स को प्ले किया करते थे इन दैट टाइम. ऑलराइट, दे अरेंज दीज लेबर्स फॉर ब्रिटिशर्स.
बेगार बिफोर ब्रिटिश, इसको दो पार्ट्स में हम समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तब इन हिल्स में बेगार सिस्टम कैसा था, एंड लेटर ऑन इसके नेचर में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज द टाइड टू लैंड ऑनरशिप. ठीक है जी. सो ग्रेजुअली जैसा मैंने कहा, इनिशियली इट वाज अ लैंड ऑनरशिप कि आपको ज़मीन दी जा रही है और ज़मीन के बदले आपसे काम करवाया जा रहा है. बेसिक ज़मींदार के जो भी एग्रीकल्चर वर्क्स हैं या उसके घर के कुछ काम हैं वो किया करते थे. दैट्स इट. एंड ये फिर धीरे धीरे ना एक ट्रेडिशन बन गया और एक रेवेन्यू सिस्टम का हिस्सा बन गया. बहुत से ऐसे किसान होते थे या लैंडलेस फार्मर्स होते थे जो टैक्स नहीं पे करने में सक्षम थे. दे वर अनेबल टू पे द टैक्सेस. सम टाइम दे विल होल्ड दी कैश. ठीक है, जो साहूकार वगैरह हैं, जमींदार हैं, उनसे कैश ले लिया, बट दे वर अनेबल टू पे देम बैक. सो थ्रू बेगार सर्विसेज जो थे वो ऐसा किया करते थे. ठीक है. सो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड कि अपने मतलब जो कैश उन्होंने लिया है वो लेबर के थ्रू उसको जो है अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. सो ये चलन, ये सोसाइटी का धीरे धीरे एक हिस्सा बन गया था एंड इट वाज एक्सेप्टेड इन दैट टाइम. इसे कोई सोशल ईवल की तरह उस टाइम पे तो नहीं देखा जा रहा था. ऑलराइट. एंड ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में भी जैसे मैंने कहा बहुत से सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, मैरिजेस हो रही हैं या अदर सोशल फंक्शंस हैं, वहाँ पर लेबरर्स चाहिए. ठीक है. स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के कंटेक्स्ट में टू होल्ड दिस पालकीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जमींदारों को, कहीं कोई पैलेस बनाना है, कोई फोर्ट बनाना है, घर बनाना है. सो उसके लिए भी इन लेबरर्स का इस्तेमाल किया जाता था एंड दे वर नॉट पेड फॉर इट. ठीक है. उनको बस ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपको एक बार हमने ज़मीनें दी हैं, ठीक है, चाहे वो 200 साल पहले दी थी, उनकी जनरेशंस को काम करना ही पड़ेगा. दे कैन नॉट से नो टू दीज जमींदार्स. ऑलराइट. सो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस वाज फॉलोड इन दैट टाइम. नाउ देयर वाज एन एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन द हिल्स. सो नाउ व्हेन ब्रिटिशर्स एंटर्ड हियर, थोड़ा सा इसका बहुत ज़्यादा थोड़ा इसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है. स्पेशली देयर इंटरेस्ट टिल्टेड बिकॉज ब्रिटिशर्स ऐसे तो एग्जिस्ट कर नहीं पाएंगे. दे नीड इंफ्रास्ट्रक्चर. दे बिल्ड मेनी मॉन्यूमेंट्स हियर. दे बिल्ड रोड्स, रेलवेज, एंड फॉर दिस दे नीड लेबरर्स. सो किससे ये मांगेंगे? जमींदारों से. जमींदार कैसे मुहैया कराएंगे? ये इन्हीं बॉन्डेड लेबर्स की तरह इन्हीं किसानों को, फार्मर्स को, वर्कर्स को ब्रिटिशर्स के लिए मुहैया कराते थे. सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल इस कंटेक्स्ट में है शिमला तिब्बत रोड. जब शिमला तिब्बत रोड का कंस्ट्रक्शन चला तो बेगार सिस्टम के तहत ही बहुत से वर्कर्स ने काम करा था. ऑलराइट. सो इट बिकेम अ इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के लिए ये काम कर रहे हैं. स्पेशली ब्रिटिशर्स का बहुत सा सामान हिल्स में आता था, बट देयर वर नो रोड्स इन दैट टाइम. तो यही लोग जो थे, यहाँ के ग्रामीण जो लोग थे, दे कैरी देयर हेवी बैग्स ऑन देयर बैक्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू सेकंड और थर्ड प्लेस. ठीक है. इस प्रकार से वन टू अदर प्लेस दे कीप ऑन मूव. और एक ट्रांसपोर्टेशन का के लिए, और ये E.S. स्टोक्स के रिमार्क्स हैं भाई, बेगार ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टिंग स्टेट मटेरियल्स एंड ऑफिशियल लगेज. तो धीरे धीरे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन गया अंग्रेजों के टाइम पे. अब एक सवाल यहां उठता है, क्या बेगार सिस्टम को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने कभी कुछ किया? डोंट दे फाइंड इट एज एन ईवल? यस, दे फाइंड इट एज एन ईवल. ठीक है. इन सम प्लेसेस दे वर ट्राइंग टू रिफॉर्म इट आल्सो, कि काम करवा रहे तो कुछ पैसा तो दो. बट व्हाट हैपन, ग्रेजुअली इसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट उनको देखने पड़े, क्योंकि जमींदार जो थे उनका एक सिस्टम बना हुआ था. सो ग्रेजुअली ना ब्रिटिशर्स भी इससे बचते थे डायरेक्टली इन्वॉल्व होने में. दे बिलीव इन इट कि भाई ये इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ द रूलर्स या जमींदार्स एंड दे कैन मैनेज इट देमसेल्व्स. वो अपने आप जो है इसे देखेंगे, खुद इससे इसका निपटारा करेंगे. ऑलराइट. सो बेगार अंडर ब्रिटिशर्स हम देख सकते हैं भाई एक्सपेंड, जैसा मैंने कहा, एक्सपेंडिंग स्कोप हुआ, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है. सो बियॉन्ड लैंड रेवेन्यू अब हो गया. ऐसा नहीं था इट वाज जस्ट कन्फाइंड टू द लैंड रेवेन्यू. ज़्यादातर अंग्रेज़ों के लिए इस प्रकार से ब्रिटिशर्स के जो प्रोग्राम्स थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए बेगार सिस्टम के तहत यहाँ के लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ. ठीक है. लेबरर्स, आर्टिशंस, ब्लैकस्मिथ्स. अभी पहले क्या था? पहले जिसको खेती आती है, जिसको बेसिक काम आते हैं वही करेगा. नाउ ब्रिटिशर्स नीड वर्कर्स
स्किल्ड वर्कर्स आल्सो, है ना, जैसे कि आर्टिशन चाहिए उनको, ब्लैक स्मिथ है, लेबरर्स भी चाहिए। तो तरह तरह के जो भी लोग थे यहाँ के, दोज हैव डिफरेंट स्किल्स, पोटेंशियल्स, उनको भी अब इस्तेमाल करने लग गए अंडर द बेगार सिस्टम ब्रिटिशर्स। और मतलब कंपेल किया गया उनको सर्विसेज देने के लिए। और इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रेवेन्यू। पहले इट वॉज अ पार्ट ऑफ, जो मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है अंग्रेजों के समय में वो यही है कि शिफ्ट ये हुआ कि जो एक रेवेन्यू सिस्टम का ये हिस्सा था पहले, अब वो ही नहीं रहा, अब इससे बियॉन्ड हो गया बेगार सिस्टम के प्रोविजंस, ठीक है, नो लॉन्गर इंटीग्रेटेड टू द रेवेन्यू सिस्टम। चलिए जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे बेगार सिस्टम के विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ एक सवाल हमारे मन में ये भी उठता है, क्या बेगार सिस्टम जो कि एक सोशल ईवल थी उस समय की, इसको खत्म करने, इसको समाप्त करने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव्स लिए गए? Yes, in the 19th century, in different regions of Himachal, many steps were taken, especially in the Shimla Hill state, where mainly this evil existed. ठीक है, कांगड़ा हिल स्टेट में ये इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शिमला हिल स्टेट्स में ये ज्यादा था। तो मूवमेंट्स भी आपको यहीं की ज्यादा देखने को मिलेंगी। सो देयर वर सम की मूवमेंट्स जो हमें देखने को मिलती हैं अगेंस्ट द बेगार सिस्टम। इस लिस्ट में पहला नाम हम लेंगे कोठगढ़ मूवमेंट का। 1921 की ये घटना है, लेड बाय सत्यानंद स्टोक्स जी, ठीक है, एडवोकेटेड अगेंस्ट फोर्स्ड रोड लेबर। अंग्रेज जो थे यहाँ के रोड्स को बनाने के लिए यहाँ के लेबरर्स का फोर्स लेबर की तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो इन्होंने इस बात का विरोध किया था उस टाइम पे, ठीक है, एंड ट्राई टू मिटिगेट दिस सिस्टम। सेकंड है झुग्गा मूवमेंट, बड़ी फेमस है झुग्गा मूवमेंट। 1883 टू 18 आएगा ये 1888 ये मूवमेंट चला, झुग्गा मूवमेंट, ठीक है। कहाँ का मूवमेंट है भाई? बिलासपुर का ये मूवमेंट है। ब्राह्मण थे गहेड़वी रीजन के जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है ना, अगेंस्ट द लोकल राजा अमरचंद। और बड़ी एक घटना घटित हुई थी भाई, सेल्फ इमोलेशन टुक प्लेस, और ये बेगार सिस्टम के अगेंस्ट ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। झुग्गास बना ली थी और कहा था हम अपने लोकल गॉड्स के साथ खुद को बर्न कर लेंगे अगर आप हमें दबाने की कोशिश करोगे। जब राजा ने अपनी सेनाएं भेजी तो लोगों ने अपनी झुग्गियों में, अपने झुग्गास में खुद को ही जला लिया, सेल्फ इमोलेशन, ठीक है। सो दिस सिस्टम वाज आल्सो ignited against the Begar system in the hills of Bilaspur region. All right, talk about the third one, धामी फायरिंग ट्रेजेडी या धामी गोलीकांड जिसे कहते हैं, लेड बाय भागमल सोठा जी, ठीक है, हिमालयन रियासत प्रजामंडल द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। बेगार सिस्टम जो यहाँ प्रिविलेंट थी, फोर्स लेबर जो यहाँ प्रिविलेंट था, उसके अगेंस्ट। All right, next we can talk about the Pajhota movement. Pajhota movement, which was the part of Quit India movement in 1942 in the hills. It was led by Lakshmi Singh and Baid, सूरत सिंह, मियाँ चूचू जैसे लीडर्स जो थे, इनके द्वारा इनको स्टार्ट करा गया था अगेंस्ट दी बेगार सिस्टम इन द हिल्स। टॉक अबाउट दी थर्ड वन विच इज दुज्जम मूवमेंट इन बुशर। 1906 का ये मूवमेंट है, दुज्जन मूवमेंट। इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था ना, उसी का एक हिस्सा था ये इन द हिल्स, स्पेशली अगेंस्ट द बेगार सिस्टम प्रिविलेंट इन दिस रीजन। ऑलराइट, सो यहां पर जो था लोगों ने प्रोटेस्ट करा, दे एक्चुअली शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लोग जो थे हायर जगहों पे शिफ्ट हो गए अपने कैटल्स के साथ, जहां पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनका, उन गांवों को छोड़ के और हायर जगहों पे चले गए अपने जानवरों के साथ, कि भाई जैसे हिजरत में एक नॉन कॉपरेशन का एक तरीका है कि आप क्या करिए, माइग्रेट कर जाइए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो इसको हमें यहां पर देखने को मिलता है दुज्जम मूवमेंट में। बेगार सिस्टम के तहत जो जबरदस्ती इनसे काम करवाया जा रहा था उसके अगेंस्ट ये इन्होंने स्टेप लिया। ऐसे ही कुनिहार मूवमेंट है भाई, ये कुनिहार मूवमेंट जो है बाबू करीम एंड गौरी शंकर द्वारा स्टार्ट करा गया था अगेंस्ट दी हरदेव सिंह। फोर्स्ड जो एक लेबर का सिस्टम यहां पर था उसको समाप्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए यहां के लीडर्स ने लोगों को इकट्ठा किया प्रजामंडल की फॉर्म में और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सो दीज आर सम ऑफ द एक्शंस टेकन बाय different leaders in different regions of Shimla Hill states to mitigate this social evil from society, और इस पर काफी हद तक सफलता भी उस समय मिली थी। ऑलराइट, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अभी इसका जो है स्टेटस क्या है बेगार सिस्टम का। इज इट स्टिल एग्जिस्टेड इन अवर सोसाइटी और नाउ इट इज प्रोहिबिटेड? सो लेट अस डिस्कस। सो
सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। सो अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली मेंशन करा गया है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में बेगार सिस्टम भी इंक्लूड है। इसके अलावा अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से समझें, सो बॉन्डेड लेबर सिस्टम वायलेशन एक्ट 1976 है, जिसके तहत जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया गया है। किसी भी प्रकार का बेगार सिस्टम के तहत अगर कोई एक्टिविटी देखने को मिल रही है, सो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऑलराइट, और इससे रिलेटेड ना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को भी लॉन्च करा गया है। अगर कहीं भी ऐसे लोग हैं तो उनको सरकार की तरफ से एक नई आइडेंटिटी दी जाएगी। पहले तो सिस्टम से रिलीज कराया जाएगा और रिहैबिलिटेट कराया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से जमीन देगी, ठीक है, और सुविधाएं उनको बेसिक देगी और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। सो दीज आर अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टेकन विद रिस्पेक्ट टू द बेगार सिस्टम, not only in the hills of Himachal Pradesh but also in the whole nation. So these are some of the important things which we have discussed under this topic. Now talk about the question. अब इससे रिलेटेड ना आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछा जा सकता है। देखिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है बेगार सिस्टम से, ठीक है, जैसे मूवमेंट्स जो मैंने लास्ट में आपको बताई हैं वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेंस में एक सवाल बन रहा है, in what ways did the Vegar system undergo a transformation during British rule in Himachal Pradesh? तो ये मेंस ओरिएंटेड एक सवाल है which you can go through, जिस पर आप आंसर लिख सकते हैं on the basis of this discussion, ठीक है जी। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन इतना ही। हैव अ नाइस डे।